Situations may rise up against you. परिस्थितियां आपके विरोध हो सकती हैं। Wrong, evil things may be planned against you. आपके खिलाफ गलत और बुरी साजिशें रची जा सकती हैं। False accusation may be levied upon you to pull you down in life. आपके जीवन में आपको नीचे गिराने के लिए आप पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, But you will not be afraid. लेकिन आप डरेंगे नहीं। My friend, Jesus wants to give you his heart. मेरे दोस्त, यीशु आपको अपना हृदय देना चाहते। Christ in you, the hope of glory. मसीह यीशु आपके भीतर महिमा की आशा है। He will surely help you to carry his heart, the heart of love for God and for the people. वे आपको अपना हृदय धारण करने में अवश्य सहायता करेंगे, ऐसा हृदय जो परमेश्वर और लोगों के प्रति प्रेम से भरा हुआ हो। Jeremiah 31:33. यिर्मयाह 31:33। The Lord says, I will put my law in their minds and write it on their hearts. मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। I will be their God. मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा They will be my people. और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। Yes, you will have the heart of God. हाँ, आपके पास परमेश्वर का हृदय होगा। They cry out to God आज परमेश्वर को पुकारें and say, Lord, I want my hard heart to be removed. I want the heart of Jesus. आप कहें, प्रभु मैं चाहता कि मेरा कठोर हृदय दूर हो और यीशु का हृदय मुझ में आए। Ezekiel 36:26. यह हिजकेल 36:26। The Lord says, I will give you a new heart. परमेश्वर कहते, मैं तुमको नया मन दूंगा And I will put a new spirit in you. और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न And करूंगा remove the heart of stone and flesh from you. और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। The heart which condemns everybody. हृदय जो सब पर दोष लगाता है, The heart which crumbles easily. हृदय जो आसानी से टूट जाता है। But I will give you a new heart, लेकिन मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, a new spirit, एक नई आत्मा which is my heart. जो मेरा मन होगा। So Revelation 3:20, the Lord says, इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु कहते हैं, open your heart अपना हृदय खोलो, as I knock at the door of your heart. जैसे मैं तेरे मन के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता If हूँ। you hear my voice, यदि तुम मेरा शब्द सुनो I will come in तो मैं भीतर आऊंगा and I will eat with you और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा and you with me. और तुम मेरे साथ। Yes, all you have to do is open your heart and say, Jesus, come into my heart. हाँ, आपको बस अपना हृदय खोल कर कहना है, हे यीशु मेरे हृदय में आइए। He is ready to come in. वो भीतर आने के लिए तैयार है Everything of the flesh will go. और शारीरिक लालसा दूर होगी, Every sin will go. हर एक पाप दूर हो जाएगा, Every fear will go. हर एक भय दूर होगा, Every demonic oppression will go. दुष्टात्मा का प्रकोप दूर होगा, Every depression will go. हर एक अवसाद दूर हो जाएगा, Every fear of loss will go. हानि का हर एक भय दूर हो जाएगा And you will have the life of Jesus in you. और आपके भीतर प्रभु यीशु मसीह का जीवन होगा। Jesus stood up in the storm and amongst the waves and said, Peace, be still. आंधी और लहरों के बीच खड़े होकर यीशु ने कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। That is exactly the power that God is giving in your heart. बिल्कुल यही सामर्थ परमेश्वर ने आपके मन में दिया है। Man may rise up. लोग आपके विरोध में आ सकते हैं, Situations may rise up against you. परिस्थितियां आपके विरोध हो सकती हैं, Wrong, evil things may be planned against you. आपके खिलाफ गलत और बुरी साजिशें रची जा सकती हैं, False accusation may be levied upon you to pull you down in life. आपके जीवन में आपको नीचे गिराने के लिए आप पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, Wrong things may be spoken to destroy your name. आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए गलत बातें कही जा सकती हैं, But you will not be afraid लेकिन आप डरेंगे नहीं, because you will know who has called you क्योंकि आप जानते होंगे कि आपको किसने बुलाया है and whose you are. और आप किसके हैं। You will never care about any wicked man, आप किसी दुष्ट व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे any situation. या फिर किसी भी परिस्थिति The की। greatest television networks may be talking against you. भले ही सबसे बड़े टेलीविजन चैनल आपके खिलाफ बोल रहे हों, In the social media, they may be speaking lies
picking up so many views. फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर झूठ बोल बोल कर ढेरों व्यू क्यों ना बटोर रहे हों, But your heart will be full of peace. लेकिन आपका मन शांति से भरा होगा। You will never care for that, आप इन सारी बातों की परवाह नहीं करेंगे, nor care for the words of those wicked people. आप उन दुष्टों के शब्दों की परवाह नहीं करेंगे। Eyes will be always on Jesus who has entered your heart, आपकी निगाहें यीशु पर लगी होंगी जिसने आपके हृदय में प्रवेश किया है, who is greater than the greatest devil in the world. जो इस जगत के बड़े से बड़े शैतान से भी महान है। And what will he say? और फिर वो क्या कहेंगे? In Acts 13:22, प्रेरितों के काम 13:22 में, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, you're a man after my own heart. तुम मेरे मन के अनुसार के व्यक्ति हो, You're a woman after my own heart. तुम मेरे मन के अनुसार की एक स्त्री हो, You have done all my will. तुमने मेरी सारी इच्छाओं को पूरी किया है। Why should I be angry with you? मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? This evil is not from me. ये बुराई मेरी ओर से नहीं है। Whatever the man is doing, the wicked people are doing, it's not from me. जो भी कोई व्यक्ति विशेष या दुष्ट लोग कर रहे हैं, यह मेरी ओर से नहीं है। The more they do things against you, the more I will lift you up. जितना अधिक वे तुम्हारा विरोध करेंगे, मैं तुमको उतना अधिक ऊंचा उठाऊंगा। The more the problems come, the more I will lift you up. जितनी अधिक समस्याएं आएंगी, मैं तुमको उतना अधिक ऊंचाइयों में उठाऊंगा। Because your heart is my home क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है and you're doing all my will. और तुम मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करते। Today, my friend, आज मेरे मित्र, do not be afraid of the world. संसार से भयभीत मत होइए। 1 Corinthians 6:17 says, पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है, your heart is knit with the heart of Jesus. तुम्हारा हृदय यीशु के हृदय से जुड़ा हुआ है। Nothing else do you need in the world. इस संसार में तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। Walk with Jesus. यीशु के साथ चलिए। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amen. आमीन। Father, पिता, we just surrender our heart to you, Lord. प्रभु, हम अपना हृदय आपको सौंपते। We will never give our heart to the wicked people or the slandering group of people. हम अपना मन कभी भी दुष्टों या निंदा करने वालों के समूह की ओर नहीं लगाएंगे। We will never listen to their voice. हम कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे We will never listen to the condemnation of our heart also. और ना ही हम कभी अपने मन की निंदा की बातों पर ध्यान लगाएंगे। Today we pray that your Holy Spirit will flow into everyone's heart. आज हम प्रार्थना करते कि आपकी पवित्र आत्मा हर एक के हृदयों में प्रवाहित होने पाए। As the Spirit of God was upon David जैसा परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर था when he prayed in Psalm 51, भजन संहिता 51 में जब उसने प्रार्थना की, saying, "Oh Lord, do not take away your Holy Spirit from me." ये कहते हुए कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। We pray in the same way. हम भी ऐसे ही प्रार्थना करते, Fill us with thy Holy Spirit. हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें Walk into us, Lord. और आप हमारे भीतर प्रवेश Help करें। us to be united with you and you alone, O God. हे परमेश्वर, केवल आपके साथ एकजुट होने में हमारी मदद करें। Give us grace to do your will. आपकी इच्छा पूरी करने का हमें अनुग्रह दीजिए। Your will, आपकी इच्छा bringing healing to the brokenhearted, टूटे मन वालों के लिए चंगाई लाना, healing to the sick, बीमारों के लिए चंगाई, delivering the oppressed, सताए हुओं के लिए छुटकारा, and bringing the people who are addicted to evil pleasures and sin out of their bondage through the name of Jesus. और यीशु के नाम से पाप और बुरी आदतों में लिप्त लोगों को उनके बंधनों से छुटकारा देना। Help us हमारी सहायता to करें। have your heart of love for the people. आपके हृदय सा प्रेम हम लोगों के प्रति रख सके। You will take care. आप देखभाल करेंगे। Thank you for protecting us. धन्यवाद हमारी रक्षा करने के In लिए। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. और अब मेरे दोस्तों, डायनामिक किड्स कैंप इस मई महीने में आ रहा है। We are going to serve thousands of children
in all the prayer towers of Jesus Calls. हम हजारों बच्चों की सेवा करेंगे जीसस कॉल्स के सभी प्रेयर टावर में, From 6 to 12 years. जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चे। 6 days camp. 6 दिनों का कैंप है। And the title of this year's program is Signet Ring. और इस साल के इस प्रोग्राम का नाम है हाथ की अंगूठी। There'll be music, इसमें संगीत होगा, singing, गीत गाना, dancing, नाचना, mime, और फिर crafts, क्राफ्ट्स, painting, पेंटिंग games, और गेम्स हैं, for them to learn the Word of God ताकि वो परमेश्वर का वचन सीख सके, and give their lives for God's mission. ताकि अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे सके। So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. तो डायनेमिक किड्स कैंप सेवकाई में आप पार्टनर बनिए, Pray for it. इसके लिए प्रार्थना कीजिए, Secondly, send your children. और दूसरी बात अपने बच्चों को भेजिए, And thirdly, give your support to make this happen because we are going to offer it free. और आप निश्चय अपनी सहायता कीजिए ताकि ये हो सके, क्योंकि हम ये सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं। And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. और चौथी बात है, आप अपना समय का यहाँ पर योगदान दीजिए, वॉलंटियर बनिए, ताकि आप आकर लोग बच्चों की अगुवाई कर सके। Here's more information. इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आपकी उदार सहायता के द्वारा अगणित लोगों की मदद हो सकती है कि वे परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ का अनुभव करें। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए इस काम में अपनी भेंट राशि और सहायता प्रदान करने के लिए विजिट कीजिए www.jesuscalls.org पर, या केवल ये QR कोड स्कैन कीजिए। हम आपको न्योता देते हैं कि आप प्रार्थना, सेवा और सहायता में हमारे साथ जुड़ जाएं। वॉलंटियर होने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं volunteer@jesuscalls.org पर, या प्रेयर टावर मैनेजर को इस नंबर पर फोन कीजिए सुबह 8 से शाम के 8 के बीच। आइए परमेश्वर का घर बनाएं, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे।